اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج میں بہت ہی خوش ہوں اس لیے کہ زبردست میں آج ایک بہت ہی بڑے، بہت ہی عمدہ اور شاندار فنکار ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اکٹھے کام کیا ہے، نعت کے حوالے سے خاص طور پہ اور صوفیانہ کلام کے حوالے سے خاص طور پہ۔ ان کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنی حیثیت ہے، لوگ بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں لوگ ان سے کہ ان کے بہت سارے کلام اور بہت ساری ان کی پڑھی ہوئی نعتیں جو ہیں ان کے اوپر 70 ملین سے لے کے 150 ملین تک ہٹس ہیں، مختلف جو ان کی پڑھے ہوئے کلام ہیں۔ سو بہت لطف آئے گا ان سے بات کر کے۔ اس کے علاوہ بھی محبت تقسیم کرنے والے ہر بزرگ کا کلام جو ہے، وہ چاہے میاں محمد صاحب ہوں، چاہے بلے شاہ ہوں، مولانا روم ہوں، وہ کلام انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور اس کی داد آپ سے وصول کی ہے۔ اور طبیعت میں ان کی ایک روانی ہے، ایک جولانی ہے، ایک شوخی اور شرارت بھی ہے۔ تو بہت لطف آئے گا انہیں سن کے بھی اور ان سے بات کر کے بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شہباز قمر فریدی صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو شہباز۔ ضرور، بڑی مہربانی، بڑی محبت، بڑی عزت افزائی، آپ تشریف لائے۔ بڑی مہربانی، تشریف رکھیے۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ شہباز بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی محبت، آپ کا پیار آپ نے یاد کیا ہے۔ شاہ جی، ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے تعارف میں، آپ نے بتایا کہ ان کی ویڈیوز پہ ملینز ویوز ہیں، تو ان کو ایک گولڈ ڈسک ایوارڈ بھی ملا تھا یو کے میں، جو کہ کسی بھی آرٹسٹ کو نہیں ملا ہے ابھی تک۔ اچھا، یہ جی کڑی کلی بھی بیٹھی ہوئے تو پکھا پھیرواں کیتا ہوندا ہے، اینو جا رہا ہے تو پھر بھی انجن کری جا رہی۔ اچھا جی، یہ جو بات کر رہی ہیں فاطمہ گولڈن ڈسک والی، تو یہ تو نصرت فتح خان صاحب کو، میڈم کو، لالے وغیرہ کو بھی تو ملا ہے۔ بالکل، یہ سنگر جتنے ہمارے پاکستان کے سٹار ہیں سب کو ملا، کیونکہ لاکھوں سیڈیز جس کی وہ ایک لمٹ ان کی تھی جو کراس ایک کرائیٹیریا ہے نا کہ جو ہاں وہ کراس کرتی تھی، خاص سیل کو کراس کرتے تھے تو ان کو دیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے شعبے میں کیونکہ نعت خوانی میں میری ملینز تقریباً 20 سے پلس تھے، وہ کراس کیا ہے، تو سیڈیز تو انہوں نے پھر یہ مجھے میرے شعبے میں واحد میں ہوں کہ اللہ پاک نے یہ مجھے ایوارڈ ماشاءاللہ، یعنی نعت خوانی کے شعبے میں صرف آپ کو یہ جو گولڈن ڈسک، جی الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس پہ؟ جیسے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہنر عطا کرتا ہے نا، کسی کو کوئی ہنر، کسی کو کوئی ہنر، وہ ہم کبھی اسے پہچان نہیں پاتے، دریافت نہیں کر پاتے، تو وہ ہماری کوتاہی ہوتی ہوگی، مگر یہ کہ سب کو کچھ نہ کچھ اس نے عطا کیا ہوتا ہے۔ مگر آپ کو ایسا ہنر عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس کا، اس کے حبیب کا اور اس کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ بات؟ بسم اللہ شاہ صاحب، یہ تو مالک کی گاڈ گفٹنگ ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو چن لیا جاتا ہے جو اس کے محبوب کی تعریف کرے، جو مالک کی تعریف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے شعبے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ بچپن سے ہی ایک گھر ایسا ملا کہ والد صاحب سے ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا نعت پڑھو، حمد باری تعالیٰ۔ اسکول میں بھی کلام اقبال وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے بہت سختی کی اور اس طرف اچھا، ان کی خواہش تھی کہ آپ ادھر ہی آئیں، مطلب گلے کا یہ استعمال کریں۔ ویسے تو ہم اسکول میں جس طرح نغمے یا کلام اقبال پڑھتے تھے، تو انہوں نے دربار شریف پہ بابا فرید میں جمعے والے دن حمد باری تعالیٰ بھی اور نعت شریف پڑھا کرتا تھا۔ تو شوق پھر بڑھتا گیا، پھر آگے مقابلے اور اسی طرح مالک نے نوازتا گیا، اور جب کیفیت ایسی بن جاتی ہے پڑھتے ہوئے کہ پھر وہ مالک کے اس زوم میں جو ہے
कहीं के कहीं निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये जो आपकी गैर मामूली मकबूलियत है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर एक चीज़ में खबर ये भी ज़रूर होगी कि उसमें आपका खुलूस और फ़हम भी शामिल है कि जो कुछ पढ़ा वो दिल से पढ़ा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी वो कोशिश की है, उस्तादों के पास बैठे हैं, बुज़ुर्गों के पास बैठे हैं, सूफ़ियों के पास बैठे हैं, तो एज ए तालिब इल्म, और अब भी तालिब इल्म हम सभी जी। कुछ लेने के लिए हाँ। कोशिश की है वाह वाह, कि कुछ ना कुछ अता हो, सुभान अल्लाह, सीखने को मिल जाए। सुभान अल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलूस मोहब्बत से कुछ सीखने को मिला है, वाह वाह, और वो मिला है तो वो डिलीवर किया है, तो वो मालिक ने बरकत डाल दी। और अभी जो इतनी माशाल्लाह पिछले कुछ अरसे में, कई सालों में बल्कि, एक गैर मामूली माशाल्लाह आपको मकबूलियत हासिल हुई है, उससे थोड़ा बहुत होता है कि बंदा कहता है नहीं यार उनमें मतलब ज़रा थोड़ा जा मेरा भी कोई प्रोटोकॉल और ये और कोई तब्दीली आई है रवैये में? नहीं, मैं तो शुरू से ऐसे ही हूँ शाह जी, आपको पता ही है, मैं आर्टिफिशियल जो है ना वो पसंद ही नहीं करता कि ऐसे तबीयत ख़राब हो जाए, चार बंदे का नाम हो जाए, पैसा गाड़ी, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको सबको मेरी तबीयत क्या वो पंजाबी की ऐसी यारां दे यार सब दे नाल बैठना, आपको पता ही है तबीयत का क्या बात है। कभी मैं अच्छा, दोस्त अहबाब भी बाज़ औक़ात ना बिगाड़ते हैं, वो कहते हैं उन तो देखो ना जी इतनी शोहरत होगी, पैसा आ गया, गड्डी, तो बाज़ औक़ात दोस्त भी कहते हैं ना कि इंज करके बुआ खुलना चाहिए, इंज करके गड्डी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कदे नहीं होया जी, ते ना मेरी इहो जी तबीयत है कि गड्डी अगे रुके तो चार बंदे नाल होण ते गनमैन वाले ते ये वो। मैं जदों भी प्रोग्राम ते जाना शाह जी अकेला, नाल मेरी टीम होंदी है, बस आराम नाल गए स्टेज ते परफॉर्मस कीती, आराम नाल गड्डी च बैठे ते घर ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਟੈਪ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। शहबाज भाई, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शहबाज फरीदी साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शहबाज साहब, हमारा एक सेगमेंट होता है ज़बरदस्त मेरा कुछ सामान के नाम से, और उसमें आप देख रहे हैं जादुई संदूक है, तो देखते हैं कि ये जादुई संदूक आज आपको कौन सी याद ताज़ा करती है। अच्छा, ये जो कुड़ी बोर्ड च बैठ के ना कह रही होती है, देखने में कैसी लग रही है, ओह माय गॉड इसमें तो सुराख है। मस्ताना साहब, मैं जब भी बाहर मेरा इत्तेफाक होता है, बीच पे जाती हूँ, कहीं भी यूरोप किसी भी ममालिक में, तो मैं बोर्ड पे जब भी जाऊँ तो मैं पूरी तैयारी के साथ जाती हूँ, मैं अपनी लाइफ जैकेट पहन के जाती हूँ। सारी गल का मतलब है कि मैं यूरोप जानी हूँ। तो कहती कराची वाले समुंदर तो मेरा दिल नहीं लगता, इत्थे रावी तो फिर तुर के आ जाती। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, AI ਜਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਰਚੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਨੀਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਧਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿस्तान वाला। शाह जी, मस्ताना भाई जैसे दोस्त थे, बल्कि ये खुद ही हैं, वो ईद वाले दिन ज़्यादा गोश्त खा लिया तो बहुत तड़फन लग गई, तो एवं ही पैप्सी च नुक्स कड्ढन डे, ठीक नहीं है, सही नहीं है ना। बहुत मजा आ रहा कुड़ी, मेरे मुर्शिद कैसी गल है कि सिर्फ मैंने जिंदगी का मकसद है कोई बंदा मैंने जुगत करे ना, बस सिर्फ मैं अंदर आने लगा तो मैंने चौकीदार ने कहा तू अंदर नहीं जाना, तो बाहर डिगन वाली हुई इस गल से। तेरे ज़हन च मैं टॉम एंड जेरी हां। मस्ताना साहब, अगर उन दोनों को पता चल जाए ना, वो ज्यादा खुश नहीं होंगे। सही बात आप कह रही हैं, को जरा कहाँ खुश होंगे, किस हैंडसम आदमी से मिला रही हैं आप उनको, कहाँ नासिर मस्ताना, कहाँ टॉम एंड जेरी, दोनों कहाँ है? मैं तो इतने बैठा हूँ, वो कितने दोनों जाने। फरीद साहब, मुझे लगता है अभी मस्ताना साहब जो है ना इस टाइम फुल मूड में आए हुए हैं, तो बेहतर है हम लोग अपने सेगमेंट की जाने चलते हैं।
शहबाज साहब तशरीफ लाएं। ਪਰਲੇ ਹੱਥ ਪਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। जनाब इसमें से चीज़ें उठानी है। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ ਚ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। इसमें तो बचपन की चीज़ें जो हैं उसमें से एक तो ये गल्ला जो है ये मुझे याद आ गई अपने बचपन की यादें। ਉਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ। पैसे के बगैर तो आप भी नहीं चलते। तो गले से क्या याद आ गया? वो इसमें गले में से पैसे जोड़ते थे ना, तो एक दफ़ा मेरे भाई ने गले में से पैसे चुरा लिए। ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕभी ਮੈਂ 20 ਕੱਢੇ ਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਮਾਰਾ। गल्ला लेके जनाब वो निकल गए और मैं सही बता तो सही रहे आप मुस्ताना भाई कि वो आगे आगे और मैं पीछे, और बहुत मारा मैंने उसे वाकई? बहुत हाँ भाई जी ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उसने कहीं छुपाया हुआ था, पर वो लेकर आए और कहा जी ये मैं सॉरी करता हूँ जी मैं ले गया था। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਓਏ 8 ਗਲੀਆਂ ਫਰਾਉਂਦਾ ਜੇ। वो होते हैं शाह साहब कभी प्रोग्राम, बात तो सही कर रहे, कहीं प्रोग्राम उठाते हैं ना, मैं कहा बेटा चुको तो जरा चुप करके काम पाओ। ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। शहबाज साहब ये तो बताइए सबसे ज़्यादा नजराना आपको कहाँ पे मिला? ਉਹ ਗੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਾ। ਭਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? जी ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਰੋਂਦੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਥਰੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਏ। फातिमा जानना चाह रही हैं कि वैसे आपके जहन में ये ख्याल क्यों आया ये बात जानने का? नहीं शाह साहब मुझे तजस्सुस पैदा हुआ है कि सुना है लोगों को तो करोड़ों रुपया जो है नजराना मिल जाता है। थोड़ा कटाओ। FBI वाले मेरे मगर ना ला दे जो, इतना नहीं होता ना, ऐसा कोई है इशू। तहरुल कादरी साहब की बिला की महफिल थी वहाँ फ्रांस में, उन्होंने बुलवाया था। हमारे बाबर भाई हैं राजा बाबर हुसैन, वो तंजीम चलाते हैं फाउंडेशन मिनहाज वेलफेयर मिनहाज वालों ने किया होगा, के ठीक है। किया था। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 40-45 हो गया था मुझे, तो ये यादगार है। मैं बताता नहीं हूँ, कोई ज़रूरत नहीं होती, जी जी जी। लेकिन मैडम ने पूछा है तो मैंने बता दिया। शहबाज साहब एक बार फिर से देखते हैं आपको ਕੋਈ अब ਪਤਾ ਨਹੀਂ कौन सी- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। हाँ ये कश्ती, वाह, ये चप्पू कश्ती नहीं, ये पानी वाली कश्ती है। ये यादगीर है जी। वो पानी में हम छोटे छोटे थे जब स्कूल में, तो वो बड़ा क्या बोलते हैं उसे, तसला तसला या तब कह लो, बाटा, तसला कह लो। हाँ जी, उसमें लगा के ये बेड़ी गुड़ 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 करके ये चलती थी। और ये यादगार हमारी याद वापस ले आए आप, वाह। बचपन में ले गए। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਲਈ, हाँ हाँ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੜ ਗਈ ਇਹਦੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰੇ। मुस्ताना साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुसी ये दसो पहले। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੈਸੀ ਨਫੀਸ ਉਰਦੂ ਸੀ, ਕੈਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਂਦੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ 250 ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਐਵੇਂ 700 ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा, तो अब क्या है आपके पास? ਬਿਊਟੀ ਬਕਸ। ਬਿਊਟੀ ਬਕਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
کدی کریلے گوشت کدی دھنیا گوشت آلو گوشت سنگنا دے شوربا بڑے ہیں نال چٹے چاول بٹ ہے نا مستانہ صاحب, تو بٹوں کے تو پھر سوٹ کیس میں ہو یا میک اپ باکس ہو کھانا ہی ملے گا آپ کو. چلتی پھرتی کنٹین میں. جی فاطمہ. جی شہباز صاحب, تو وہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کہ پبلک سب جانتی ہے, تو دیکھتے ہیں پبلک شہباز صاحب سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی بسم اللہ. جناب. یہ جاننا چاہتی کی لیندے ہو؟ یہ تو میں کدے اپنے گھر والے نہیں دسیا. جی. شہباز صاحب, آپ باہر بھی پرفارم کرتے ہیں, یہاں پر بھی مصروف رہتے ہیں, کہ بھابھی شکوہ نہیں کرتی, کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ کیا کوئی سنجیدہ کلام سنا کر چپ کروا دیتے ہیں؟ نہیں, بچوں کے ساتھ جب ان کا وقت نکالنا ہوتا ہے پھر ان کو ٹائم دیتا ہوں میں پراپر. بچوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں, باہر جانا ہو, ممالک جانا ہو, وہ مینج کرتا ہوں میں. ٹائم مینجمنٹ. جی الحمدللہ. مگر مصروفیت تو آپ کی ہے نا غیر معمولی. لیکن عادت پڑ جاتی ہے وسیع بھائی. عادت کیا, بھی ایک روٹین ایسی بن جاتی ہے کہ ہاں بھائی رات کو پروگرام کر کے آنا ہے, صبح سونا ہے, پھر سارا دن, پھر شام کو اٹھنا ہے, پھر وہی ٹائم ہوتا ہے جو بچوں کے لیے. بیگم صاحبہ آپ سے کون سی چیز فرمائش کر کے سنتی ہیں؟ بیگم صاحبہ فرمائش کر کے فرمائش کر کے یہ کہندے ہونے نے, وہ جڑے گنے نے نا وہ ادھر لے آؤ. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہباز بھائی جناب, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. سو اینی ریگریٹ ان لائف؟ ہاں ایک ہے جی, دل میں کسک رہ گئی ہے کہ اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے, ماشاءاللہ دنیا کی ہر چیز ہے, ماشاءاللہ, نام, پیسہ, عزت. ہاں. اگر اس وقت میرے والد صاحب ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے, کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو مالک اس طرح نوازے گا, اس طرح نوازے گا, تو کمی کو نہیں چھوڑی. یہ کسک اس وقت اگر والد صاحب ہوتے, والدہ بھی ہوتی, تو وہ بہت خوش ہوتی. دونوں اب اس دنیا وہ میں, دنیا میں نہیں ہے. اور والد نے تو بڑی محنت کی آپ کو لے کے آئے ادھر. بہت, انہوں نے انگلی پکڑ کے مجھے چلایا, سکھایا, بتایا, اور دنیا داری جو ہے وہ انہوں نے سمجھائی کہ بیٹا چلنا کس طرح اس دنیا کے ساتھ. ہمیں خیال ہے وزاداری بھی انہوں نے سکھائی ہوئی. کوئی شک نہیں. تاڑی جی خاص وہ طور ایک فقیر آدمی تھے, صوفی آدمی تھے, تو وہ یہ انہی کا اصل دعا. دعا تو ہوتی نا, سب کہتے سب ماں کی دعا ہے, لیکن اصل جو ہے وہ میرے والد صاحب کی نگاہ دعا ہے, نگاہ ہے. انہوں نے جو وہاں نوکری کی بابا حضور کے قدموں میں, اس کا صلہ مجھے ملا ہے. میں تو نالائق آدمی ہوں, تو یہ کسک ساری زندگی مجھے رہے گی کہ وہ آج ہوتے تو اور اس سے ان سے زیادہ فیض حاصل کرتے, اور وہ خوش ہوتے کہ میرے خدمت کرتے آپ بھی. بالکل, اور اتنا نام اور مالک نے اتنا نوازا ہے. اور یہ جب آپ کا شہرت کا عروج شروع ہوا ماشاءاللہ, تو اس میں سے کچھ حصہ وہ دیکھ سکے یا بالکل بھی نہیں؟ جی کچھ سٹارٹ میں جب تقریباً 89-90 میں جو ہے, وہ تو کافی عرصہ ہو گیا. ہاں جی, وہ کراچی, لاہور جو بڑی محافلیں ہوتی تھی اس وقت, تو وہاں میرے ساتھ ہی جاتے تھے, تو کافی عرصہ ان کے ساتھ رہا ہے. مگر یہ جو غیر معمولی آپ کا عروج جی ہے, ہاں, وہ اس کے بعد نہیں دیکھ سکے. میں اگر شہباز صاحب سے پوچھوں کہ ماں باپ تو ہمیشہ ہی یاد رہتے ہیں, ہر وقت یاد رہتے ہیں, لیکن اگر آپ سے پوچھوں کہ والد صاحب کے چلے جانے کے بعد آپ کو اپنے ابو سب سے زیادہ یاد ہے؟ زیادہ مجھے ایک دفعہ عمرے کا ٹکٹ نکلا تھا, تو ان کو میں نے بھیجا عمرے پہ. جب واپس آئے تو دوبارہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ چلے, تو والدہ صاحب تھی, وہ نہیں گئے. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ جاؤ. وہ ایک فقیروں کی رمز ہوتی ہے. انہوں نے مجھے پہلے بتا دیا کہ میں سرکار سے 2 سال کی اجازت لے کر آیا تھا, اللہ اکبر. اب مجھے امر نہیں ہے. یہ میں آج فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ بڑی
रूहानियत और बात छुपाई जाने वाली बात होती है, ये फ़कीरों की रम। मैं कभी जिक्र नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम आपके शो में कि उन्होंने पहले बता दिया कि मैंने जान, तो मुझे वो मेरे दिल में था कि अगर ये मेरे साथ जाते तो मुझे इतनी खुशी होती, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ हासिल किया। वालिद भी थे, मुर्शिद भी थे, रहनुमा भी थे, उस्ताद भी थे, और उनसे बहुत कुछ हासिल। मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप अपने वालिद के अलावा भी, इस रिश्ते के अलावा भी, बहैसियत इंसान भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। होता ना कि बंदा रिश्ते होंगे ने, भरा है, माँ है, पुत्र है, बहुत सारे रिश्ते ने, मगर तुसी एक रिश्ते तो अगे भी हटके कि नहीं यार बंदा बहुत अच्छा है, मेरा भरा है, मगर अलग तो भी। तो मुझे महसूस हुआ कि आप उसके अलावा भी आपके वालिद साहब की बहुत सूफी मंशा इंसान थे। और आखिरी क्या बात हुई थी आपकी अपने वालिद से? आखिरी बात जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे बाद जो है अपने भाइयों का, अपनी वालदा का तुमने ख्याल रखना है। ये लम्हात थे। और उसके बाद छोटा था, फिर पता ही नहीं चला, और सारी ज़िंदगी अब मुझे ना वो वसी भाई जब अकेला होता हूँ ना तो अजीब सी मेरी फिर हालत हो जाती है। वो आखिरी जुमले आपको याद रहते हैं? कैफियत होती है मुझ पे, वो फिर जाती नहीं। बच्चों को, फैमिली को, वालदा को कभी मैंने महसूस नहीं होने दिया था। तो जब कभी अकेला होता हूँ तो फिर उनकी याद आती है, तो वो ये दुनिया सिस्टम जब देखता हूँ तो उनकी वो बातें समझाई अब याद आती है कि जो जो उन्होंने बोला था वो ये क्या हो रहा है, ये सब फ़कीर का मुंह से निकला वो सब पूरा हुआ है। वाह, अल्लाह ताला, जैसे कि आप ख़ुद बता रहे हैं, आपकी बातों से भी लग रहा है फ़कीर मनश आदमी थे, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उन्होंने हर हवाले से बड़ी उम्दा आपकी तरबियत की। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। तो ये फरमाइए कि वो लम्हा जिसने शहबाज कमर फरीदी को, हमारे दोस्त को, सबसे ज़्यादा खुशी दी हो। जी 2 लम्हे हैं। वो एक तो वालदा साहबा के साथ मैं तकरीबन हर साल ही मदीना शरीफ जाता था माशाल्लाह। एक दिन सैयदा पाक के कदमों में हम बैठे थे, सलामुल्लाह अलैहा, तो उन्होंने जो ऐसे झोली उठा के मुझे दुआएं दी हैं ना माँ ने, वो मुझे आज तक लम्हा वो नहीं भूला, और उसको मैं मिस करता हूँ हमेशा। शहबाज तेरे लिए ये हो जाए, और बीबी के कदमों में वो कमी, वो लम्हा जो है मेरे खुशी का वो। और दूसरा तकरीबन 27-28 ईयर्स हो गए मुझे जाते हुए, तो मैंने ऐसे मस्जिद नबी सरकार के कदमों में जैसे साईं के साथ बातें नहीं करते, तो मैंने कहा हुजूर इतनी देर हो गई हमें आते, हमें भी कोई खिदमत का सिला मिले कि आप, मुझे पता चले कि साईं सुन रहे हैं कि हम भी गुलामी रसूल की लिस्ट में हैं। सुभान अल्लाह। मैं ये बातें अपने ताई साईं के साथ कर रहा हूँ, जाली मुबारक के। यकीन करे कि उसी वक्त ही एक आदमी ने वो कनात हटाई है, और मैं सीधा हजूर की जालियों के रोज़ा रसूल की, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गेट है, अमायशा पाक के घर का दरवाज़ा है सैयदा पाक का, तो वो मैं अंदर उनके पास सरकार की जाली मुबारक जहाँ लिखा हो वल हबीबुल्लाह जी तुरजा शफात, तो वहाँ चला गया। जैसे इज़्न मिल गया, इज़्न मिल गया। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, गैर मामूली वाक़या आपने शेयर। ये मैं खुशी का लम्हा जो है, इससे बढ़ के कि उसी वक्त करम जो हुआ है उससे बड़ा है ही करम। आप देखें ना, मुसलमान और अकीदत और निस्बतें क्या होती हैं कि इतना कुछ है ना, पैसा, शोहरत, ये यूट्यूब के क्या होते हैं जी, मिलियंस और गाड़ियाँ और सब कुछ, मगर आपके लिए खुशी के लम्हे जो हैं दो, वो दोनों के दोनों जो हैं वो अपना मदीने में है, हुजूर की बारगाह, हुजूर की बारगाह, वो याद है, यादगार लम्हे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए अता भी कैसी कैसी हुई, सुभान अल्लाह। ये तो रूटीन पर के लम्हे है ना, पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गई, लेकिन जो साईं की तरफ जिसकी वजह से हम इज़्ज़तदार हैं, इज़्ज़त मिली हुई है, नाम है, ये सरकार की निस्बत की वजह से, वरना हम में कौन है, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं। फिर तो सदियां उसे सीने से लगाती हैं वसी, जो तेरे नाम से एक बार पुकार आ जाए। वाह वाह। ये फरमाइए, ये आपने हैप्पीएस्ट मोमेंट शेयर किया, सबसे यादगार लम्हा
शहबाज कमर फरीदी साहब की ज़िंदगी का? जी वसी भैया, यादगार भी कह सकते हैं लेकिन ना भूलने वाला ये वाक़या है। और कभी कभी मैं, क्योंकि ये कभी कभार ऐसे लम्हे आते हैं या तो आदमी उसको चेज़ कर लेता है या फिर मिस कर देता है, दो ही बातें होती हैं। अच्छा। सरकार की बारगाह में थे तो मियाँ साहब भी उधर थे, तो वो वफद में अंदर जाने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, खुर्शीद अहमद खुर्शीद साहब रहमतुल्लाह अलैह नात खां थे, वो भी साथ थे। तो वो मियाँ साहब महफिल कराते हैं, तो वहाँ अब राय में ख़त्म हुई तो उन्होंने नाम दिए कि ये बंदे अंदर जाएं, तो हम भी साथ वज़ू करके पीछे उनके चले गए। तो वो जाने लगे तो वो सरकार का दरवाज़ा खुल जाता है, वो जो लोग होते। तो जैसे खुले, मैं और खुर्शीद भाई जो है ना जब आगे पहुँचे हैं ना, तो हमारे अजीब जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। तो मैं वहीं रुक गया कि मेरे और हजूर की बारगाह किस मुंह से मैं अंदर जाऊं, हम तो चौकट के काबिल हैं, आगे नहीं जा सकते। तो खुर्शीद भाई भी और मैं भी वहीं ही उसी वक्त वहाँ रुक गए, हम में हिम्मत नहीं हुई कि आगे जा सके। ये मेरा लम्हा अजीब एक लम्हा था, वो कैफियत का, वो यादगार मेरे ज़हन में है। बस मंजूरी उनकी तरफ से तो मंजूरी थी ना, बस उन्होंने फिर, हम इस लायक ही नहीं है कि किस मुंह से। यार आपने तो हैरानी कर दिया किस मुंह से कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीर का एक शेर मुझे याद आ गया, दूर बैठा गुबारे मीर उनसे। हाँ हाँ, कि मीर का जो गुबार भी है ना वो भी दूर बैठा है। दूर बैठा गुबारे मीर उनसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। और अदब पहला करीना है, अदब पहला करीना है। वो तो वो जाने कि किसके बारे में क्या फैसला करता है। हाँ बिल्कुल। मगर मेरे ख्याल में उस गुलाम का एक अपना ही मकाम होगा जो अदब की वजह से चौखट भी क्रॉस ना करना चाहता हो। हम तो इस वाह काबिल वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस मुंह से उस दरबार में जाएं। वो देखिए अल्लामा ने भी यही कहा ना कि वो गर तुमी बीनी हिसाबम नागुजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बिगी। हुजूर ये फरमाइए कि शहबाज कमर फरीदी साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। सबसे गमगीन लम्हा तो यही है कि जब मेरी वालदा इस दुनिया से गई तो उस वक़्त के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाया। बस वो जो उस वक़्त वो लम्हा था वो जानलेवा था। मैंने अपनी माँ से इश्क किया है, तो जिससे आप इश्क करें उससे बिछड़ जाएं तो उसके ऊपर क्या आलम होगा। अजीब कैफियत थी वो जब मैं वालदा साहबा इस दुनिया से गई। और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र होगी तकरीबन कोई 30 के करीब। अच्छा। और ये जो अचीवमेंट्स है आपकी, उन इसका कुछ हिस्सा वो देख सके? हाँ, कोई आधा हिस्सा उन्होंने देखा, थोड़ा सा उन्होंने, माशाल्लाह। और क्या कहती थी आपको प्यार से वो? नन्ना। नन्ना। हाँ। तो नन्ना कहने वाला अब नहीं है, कोई नहीं है। कभी कभार या फिर वो जब भी कोई ऐसा लम्हा आता है, ऐसा मकाम आता है, ज़ाहिर है खुशी गमी तो साथ साथ है ना जी, तो खुशी में भी याद आती है, गमी में भी याद आती है। दो चीज़ें जो ज़िंदगी से आपने मनफी और मस्बत सीखी हो या जानी हो? कि माफ़ कर देना चाहिए। अगर किसी से ज़्यादती भी किसी ने कर दी है, मेरा तजर्बा ये है, उसको माफ़ कर दें। अच्छा, ये बहुत मुनफरिद बात है, ये नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी से ये कशीद किया कि माफ़ कर देना चाहिए। ये आपका रवैया रहा या माफ़ न करने पे अब आप समझते हैं माफ़ कर देना चाहिए? ये क्यों आपने ये बात की कि माफ़ कर देना चाहिए ज़िंदगी से? मेरे ख्याल में ज़िंदगी बड़ी छोटी है। हाँ। और इससे आगे बढ़ना चाहिए। जो मेरा सफ़र रहा है, वाह, बड़ी बड़ी चीज़ें आई हैं, हाँ। रास्ते में दरगुजर की है। हाँ।
कि छोड़ो यार, माफ़ करो, आगे बढ़ो, आप अपना मिशन पे जारी रखो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट। मगर एक चीज़ इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मुआफ़ करना मुश्किल होता है या आसान होता है? होता तो मुश्किल है माफ़ करना, लेकिन इसके लिए दिल जिगरा चाहिए। दिल जगह रहेगी। उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है? कोई रियाजत भी है उसकी? मुआफ़ करने की हाँ हाँ, वो दिल नहीं चाहता, कभी कहता नहीं यार ने बड़ी ज्यादती की है साढ़े नुक्ते नज़र नाल। लेकिन हमारे नबी पाक ने भी और कुरान में भी फरमाया है कि माफ़ कर दो, सुभान अल्लाह, उसमें तुम्हारी अजमत बढ़ेगी, कम सुभान नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाज़रीन बड़ी अहम बात की हमारे दोस्त शहबाज कमर फरीदी ने कि और ये वही शख्स कर सकता है जिसने दीन इस्लाम के फ़लसफ़े को, सीरत को, कुरान को, दीन इस्लाम जो कुछ सिखाता है उसको करीब से पढ़ा हो, समझने की कोशिश की हो, उस पर जितना भी इंसान हमारी बिसात होती है हम सब अमल करने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे एक बड़ी अहम बात याद आ गई। एक बहुत ही अहम बुज़ुर्ग इस मुल्क के, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, सरफराज शाह साहब का, हाँ जी, और एक और हमारे दोस्त हैं, वो बहुत काबिल आदमी है और वो भी तसव्वुफ़ के आदमी हैं, बहुत करीब हैं वो प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब के। जी जी, तो मुझे उन्होंने बड़ी अहम बात की अगले दिन, कहने लगे यार मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा था सरफराज शाह साहब से, तो कोई बात इसी तरह का मैंने सवाल किया, तो कहने लगे शाह साहब ने कहा कि अगर आपके सामने कोई चीज़ बिल्कुल बाज़ औक़ात आपको समझ ना आ रही हो कि इस मौके पे क्या करना चाहिए, कैसे मैं बिहेव करूँ, क्या करूँ, तो ये सोचिए कि अगर आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पूछते या होते तो वो क्या इस मौके पर अमल इख्तियार करते, कौन सी चीज़ को वो करते, उस जानिब चले जाइए, उसी में बेहतरी है। तो आपने देखिए, आपने इस वक्त वही बात की, मैंने आपसे पूछा कि मुआफ़ करना मुश्किल होता है, कैसे किया जाए, तो आपने कहा कि जैसे ही आप ये सोचेंगे कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माफ़ कर दो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बेशक। बड़ी अहम बात की आपने। तो थैंक यू सो मच शहबाज, आपसे जब भी मिलें और हमेशा एक नया और पहले से बेहतर और ख़ूबसूरत इंसान जो है उससे मुलाकात होती है। आपकी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।